Hello, my dear students. We are pursuing our topic life processes. और लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमारा जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस चल रही है. इट इज़ व्हाट? न्यूट्रिशन. As we discussed in the previous classes that we are the human beings, we are multicellular. That is, our body is made up of many cells, and we have complex body organization. So to perform the each life process in the efficient way according to the need of the body, we have the organ system or the body system to perform our each life process. To perform nutrition, we have digestive system, and we are pursuing our topic, the digestive system of human beings. In our previous classes, we had discussed that the digestive system of the human beings, it is made up of two parts, alimentary canal and digestive glands. एलिमेंटरी कैनाल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, द सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो व्हाट आर एक्चुअली द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है. It is made up of two parts, the alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal, it starts from mouth, then buccal cavity, then pharynx, then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine, at last the anus. हमारी इस एलिमेंटरी कैनाल के अंदर और साइड में लगी हुई है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. These digestive glands, they releases the digestive juices. The digestive juices are put into the alimentary canal, and with the help of digestive enzymes, they are present in the digestive juices. The digestion of food occurs in the alimentary canal. So we'll discuss today the digestive glands. Slide में शो हो रखा है digestive glands. They are actually of 5 types: the salivary glands, gastric glands, liver, pancreas, and intestinal glands. अब यहाँ पर मैंने बोला है the digestive glands releases the digestive juices. The digestive juices are put into the alimentary canal, and with the help of digestive enzymes which are present in the digestive juices, the digestion of food occurs in the alimentary canal. सर, ये digestive enzymes क्या है? तो पहले हम डिस्कस करेंगे digestive enzymes. So we'll discuss digestive enzymes. Digestive enzymes. एंजाइम क्या है? एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है. सर, कैटलिस्ट क्या है? The substance which controls a chemical reaction is known as catalyst. Which controls a chemical reaction, which regulates a chemical reaction, is the catalyst. Regulates का मतलब, controls का meaning किसी रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, कम करना, ज्यादा करना. दिस इज रेगुलेशन. So catalyst is the substance which controls a chemical reaction, is known as catalyst. And those catalysts which are present in the living beings are known as biocatalysts. Enzymes are the biocatalysts. They are present in the living being to control various biochemical reactions. हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, होलोजैक न्यूट्रिशन है. होलोजैक न्यूट्रिशन इज मेड अप ऑफ 5 stages: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion.
यहाँ पर एंजाइम्स का मेन रोल है डाइजेशन में. डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर फॉर्म एंड दैट इज व्हाट द डाइजेशन. Enzymes helps in digestion. They helps in converting the complex form of food materials into simpler form. Enzymes works on the phenomena of lock and key theory. Enzymes works on the phenomena of lock and key theory. एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी होगी. हमने ताला लगा हुआ है, चाबी डाली, ताला खुल गया, साइड में रख दिया. चाबी ताले में लगी हुई है. हमने ताला लगाया, लॉक किया, चाबी निकाल के पॉकेट में डाल ली, चाबी खर्च नहीं हुई. एंजाइम्स भी अपना काम कर देते हैं. दे इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन. बाय द एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन दे आर रिलीज्ड. एंजाइम्स आर नेवर कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे वर्क्स ऑन द फेनोमेना ऑफ लॉक एंड की थ्योरी. तो एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी है, एक पर्टिकुलर फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम्स है. एंड द एंजाइम्स वर्क्स ऑन द फेनोमेना ऑफ लॉक एंड की थ्योरी. So my dear students, this is all about the enzymes. Enzymes actually, they are proteinaceous in nature. Now, enzymes क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया है. और हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो 5 तरह की हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स जो बकल केविटी में हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में है, लीवर एंड पेंक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में है, और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन. नाउ ये कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में एक डिस्क्रिप्शन है कि हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर. दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर. एक्सो मीन्स आउट एंड क्राइन मीन्स सिक्रीशन. These glands releases the digestive juices. डाइजेस्टिव जूसेस को भेजा जाएगा एक ट्यूब के अंदर, और ट्यूब के जरिए वो डाइजेस्टिव जूसेस जाएंगे एलिमेंटरी कैनाल के अंदर. इसीलिए इन ग्लैंड्स को बोला जाता है ट्यूब बियरिंग ग्लैंड्स और डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स. ट्यूब बियरिंग ग्लैंड्स और डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स अपने डाइजेस्टिव जूसेस को अपने से बाहर निकाल देती है, एक्सो कर देती है, बाहर निकाल देती है. इसीलिए बोला है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन इन नेचर. दे आर द ट्यूब बियरिंग ग्लैंड्स और दे आर द डक्ट बियरिंग ग्लैंड्स. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का पहला कैरेक्टर कि हमारी जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर. तो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है दे आर एक्सोक्राइन इन नेचर. हमारी बॉडी के अंदर वी हैव द अनदर ग्लैंड्स एंड दे आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडो यानी इन एंड क्राइन यानी सिक्रेशन. जो ग्लैंड्स अपने सिक्रेशंस को अंदर ही डाल दे. अंदर का मतलब द एवरी बॉडी पार्ट इज सप्लाइड विद ब्लड. ये ग्लैंड्स अपने सिक्रेशन को अंदर के अंदर ही ब्लड में डाल देगी. इसीलिए बोला एंडोक्राइन ग्लैंड्स. द ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स द सब्सटेंसेस inside the blood, so they are the endocrine glands. They are the tubeless glands or they are the ductless glands. These glands are not having the tubes or the ducts, so they are the tubeless glands or they are the ductless glands. ट्यूब को डक्ट भी बोल देते हैं.
हमारी जितनी भी हार्मोनल ग्लैंड्स है, हमारी जितनी भी ग्लैंड्स है, वी सीक्रेट्स द हार्मोन्स, दे आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक्सोक्राइन है और हार्मोनल ग्लैंड्स है वो एंडोक्राइन है। नाउ ये पिक्चर है और ह्यूमन बॉडी की पिक्चर है, इसमें आपको इन ग्लैंड्स की लोकेशन दिखा रखी है। सलाइवरी ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक। लिवर and pancreas they are present near small intestine. This is the small intestine. Small intestine के पास में होगा liver and pancreas। जो liver and pancreas ये अपने secretions को डालेगा small intestine के अंदर। ये एलिमेंटर कैनाल के बाहर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वी हैव द फिफ्थ टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। दिस इज व्हाट द इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो ये पिक्चर है इन ग्लैंड्स की, मोटे तौर पे आपको लोकेशन शो कर रही है। बट आप डायग्राम से विजुअलाइज कर सकते हैं कि लिवर देखो कितना बड़ा है। तो बुक्स में लिखा होता है लिवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। अरे लिखे हुए कोई क्यों पढ़ते हो, देख लो। लिवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड दिख रहा है, देख लो। और उससे दूसरी छोटी ग्लैंड है, वो कौन है? वो पैंक्रियाज है। यहां पर ये आपका पैंक्रियाज है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो याद करने की जरूरत क्या है, पढ़ने की जरूरत क्या है, देख लो, दिखा रहा हूं आपको। द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लिवर एंड पैंक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। नाउ विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई एम टेकिंग फर्स्ट द सलाइवरी ग्लैंड। I am really thankful to my team members who are making the slides for the teaching for this online platform of Sankla classes. Sankla classes is running in Karnal for the last 20 years और कोविड पीरियड के अंदर सांकला क्लासेस ने अपना, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था तो मेरे पास में अपना एक मोबाइल था और इस मोबाइल को सेल्फी स्टिक में टांग के और एक बाल्टी के अंदर मिट्टी भर के और उसको उसमें गाड़ के मैंने मेरा पहला वीडियो बनाया था और बहुत बच्चों ने उसको देखा था। और उस समय मतलब बच्चों को ये था कि कब सर की क्लास रिलीज हो तो हम देखें। उस समय मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि ऑनलाइन का स्टाइल ये है, ऑनलाइन इस तरह से काम करता है। आज परमात्मा की दया से सांकला क्लासेस इज हैविंग द वेल डेवलप्ड स्टूडियो टू कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस, द हाई रेजोल्यूशन कैमरा एंड द इंटरैक्टिव पैनल एंड द कॉन्फ्रेंस स्क्रीन। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपको क्लासेस की क्वालिटी बेटर से बेटर देता जाऊं। आज हमने टीम भी डेवलप कर ली है जिसमें हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो बैठ के दिन भर स्लाइड्स बनाते हैं, मटेरियल की मेकिंग करते हैं और पूरी कोशिश चल रही है सांकला क्लासेस की कि आपको ऑनलाइन के अंदर हम ऑफलाइन का फील देंगे। नाउ ये सलाइवरी ग्लैंड्स आपको शो कर रखी है। सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा तीन तरह की है। पैरोटिड ग्लैंड्स, दीज आर लार्जेस्ट। पैरोटिड ग्लैंड्स जो होंगी दे आर द लार्जेस्ट। तो पैरोटिड, दीज आर लार्जेस्ट।
सैलाइवरी ग्लैंड्स में लार्जेस्ट, हेलो, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लिवर। मैं कह रहा हूं, अभी मैंने सैलाइवरी ग्लैंड का टॉपिक शुरू कर रखा है, तो सैलाइवरी ग्लैंड्स है, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। इसके अंदर जो लार्जेस्ट सैलाइवरी ग्लैंड है वो है पैरोटिड, जो हमारे कानों के पास में अंदर की ओर है और वो अपने सिक्रेशंस को जीभ के अंदर छोड़ती है। देन लिंगुअल से ही क्लियर हो जाता है कि जीभ से रिलेटेड, ये हमारी जीभ के नीचे होती है। सबमैंडिबुलर, जीभ के पीछे वाले हिस्से पे, जहां पर बकल कैविटी एंड होती है, वहां पर है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स रिलीज करती है सलाइवा। सलाइवा क्या करता है? विल शो बाय द स्लाइड, बाय द टेक्स्ट। इसमें देखो सलाइवा है, salivary glands, they are 3 pairs. Salivary glands, they are 3 pairs. They releases saliva, और सलाइवा के ये आपको फंक्शन शो किए हुए हैं। These are the functions of saliva. These are the functions of saliva. It kills the germs or the microbes. It kills the germs or the microbes in the food and the buccal cavity. मतलब सलाइवा में इतनी ताकत है। इसीलिए जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, वो पेशेंट्स को बोलते हैं कि डोंट टेक कट फ्रूट्स, आप कटे हुए फ्रूट्स ना खाओ। उनको एडवाइज किया जाता है कि आप फ्रूट्स को बाइट करके खाओ, क्योंकि पेशेंट है जब उस फ्रूट को बाइट करेगा तो कटे हुए पार्ट के ऊपर सलाइवा लग जाएगा, और वहां पे सलाइवा लग जाएगा तो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी, और माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं होगी तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कैंसर पेशेंट का ड्यूरिंग कीमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी उनका इम्यूनिटी लेवल है वो 0 चला जाता है। हल्के से भी माइक्रोब्स अंदर चला जाएगा तो दे विल सफर द सिवियर डायरिया। तो कैंसर पेशेंट्स को डॉक्टर्स एडवाइज करते हैं कि डोंट टेक कट फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स को काट के रख देंगे तो उस पर माइक्रोब्स बैठ जाएंगे, और माइक्रोब्स बैठ जाएंगे तो पेशेंट जब खाएगा तो जाके वो बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई कर जाएंगे और डायरिया हो जाएगा। तो उनको कहते हैं कि आप फ्रूट्स को बाइट करके खाओ। उसके पीछे लॉजिक ये है, दैट सलाइवा किल्स द जर्म्स और द माइक्रोब्स। सेकेंड है लुब्रिकेट्स द फूड फॉर इजी स्वेलोइंग। खाने को लुब्रिकेट करता है ताकि हम आसानी से उसको निगल पाएं। और तीसरी बात, सलाइवा कंटेन्स दिस इज द थर्ड फंक्शन, सलाइवा कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, दिस इज व्हाट salivary amylase. Another name for the salivary amylase is ptyalin. This converts the starch into maltose. ये सलाइवा का फंक्शन है। It kills the germs or the microbes, lubricates the food for easy swallowing. It contains a carbohydrate digestive enzyme, that is what salivary amylase, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन। इट कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू माल्टोज। अब ये टॉपिक मैंने करा दिया है 10th क्लास के अंदर, सीबीएसई में क्या पूछा जाता है उस लेवल पे, लेकिन साथ के साथ में मैं एनटीएससी पार्ट एंड फाउंडेशन पार्ट भी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स है, उनकी 3 टाइप है, पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है एंड सबलिंगुअल है। ये एनटीएससी में और फाउंडेशन में आता है। फाउंडेशन पार्ट है वो +1 +2 में काम आता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों को नॉलेज होना चाहिए कि सर माल्टोज क्या होता है, स्टार्च क्या होता है। तो जनरली ये बच्चों को पता नहीं होता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडिशनल टॉपिक आपको कराना चाहूँगा कि स्टार्च एंड माल्टोज होता क्या है। Carbohydrates on the basis of their size of molecules, they are of 3 types. So 3
types of carbohydrates on the basis of their size of molecules. On the basis of their size of molecules, carbohydrates, they are of three types. That is what? Monosaccharide, monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. आज मैं सुबह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दो तीन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आजकल डेवलप हो रहे हैं जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, अपनी क्लासेस ले रहे हैं। वो उस कंपनी की टी शर्ट पहन लेते हैं और उस पर लिखा होता है कि ये कंपनी है। नाम तो मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगा। मतलब एक टीचर है, टीचर की एक जो पर्सनालिटी है वो सोबर होनी चाहिए। टीचर बाउंसर नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, टीचर का काम है बच्चे को सब्जेक्ट सिखाना और उसको एंजॉय करवाना सब्जेक्ट के साथ, ना कि स्टाइलिश इंग्लिश बोलना ताकि बच्चे के ऊपर से निकले। तीसरी बात, वो क्लास मुझे देख के ये लग रहा है कि आने वाले जनरेशन में बच्चों का नॉलेज लेवल गिर जाएगा, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा था वो हमारा 1/4 भी नहीं है, और जो 1/4 भी पढ़ाया जा रहा है वो 100% इंफॉर्मेटिव नहीं है। उसको क्लास को देख के अपने आप से अच्छा लगा कि वाकई में हम क्या पढ़ा रहे हैं दुनिया को। ठीक है कि उन्होंने अपने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिए हैं, हमारा छोटे स्केल पे चल रहा है, बट हम हमारे प्रोफेशन के साथ में चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप अपने प्रोफेशन को प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो आप चीटिंग कर रहे हैं, और जो अपने आप से चीटिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके धोखा खाते हैं। The three types of carbohydrates, that is what? Monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. Mono यानी single. Those carbohydrates, they are made up of single units. मतलब ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स है, they are made up of single units. तो वो है monosaccharides. एग्जाम्पल है ग्लूकोज। Glucose is known as simplest sugar. It is the simplest sugar. क्वेश्चन पूछ लेगा विच इज द सिंपलेस्ट शुगर? ग्लूकोज। अरे भाई आप +1 +2 में मेडिकल नॉन मेडिकल नो लो यार। लेटर ऑन आप कोई भी कंपटीशन देंगे, चाहे आर्मी में जाने के लिए देंगे, चाहे डिफेंस में जाने के लिए देंगे, चाहे आप किसी भी यूपीएससी का एग्जाम देंगे, चाहे आप गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्स देंगे, वहां पर एक जनरल स्टडीज का पेपर होगा, चाहे आप एसएससी का देंगे, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये फाउंडेशन आपका 10th क्लास तक बन जाना चाहिए। The glucose is the simplest sugar. Glucose is also known as instant source of energy. That's why the glucose is given to the patient. क्योंकि एक पेशेंट है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, अगर उसको सॉलिड फूड देंगे उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो वो इलनेस से रिकवर नहीं कर पाएगा। Glucose is the instant source of energy. It is given to the patient. It is directly absorbed into the blood. It goes into respiration, the oxidation of food, and the energy release. That energy release help the patient to recover from illness quickly. So it is the instant source of energy. It is the simplest sugar. Another monosaccharide is fructose. It is sweetest sugar. This is sweetest sugar.
डाइसेक्राइड, डाई बोले तो दो, दोज कार्बोहाइड्रेट्स their particles are made up of two molecules, or simply say their each particle it is made up of two molecules, that is disaccharides. Example maltose, तो maltose एक डाइसेक्राइड है, it is made up of two glucose units. Lactose, it is milk sugar, it is made up of glucose plus galactose. सुक्रोज, इट इज कैन शुगर, गन्ने के जूस में हमें सुक्रोज मिलता है. पॉलीसैकेराइड्स, दोज कार्बोहाइड्रेट्स दे आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स, वो है पॉलीसैकेराइड्स. एग्जाम्पल शुगर, स्टार्च एंड सेलुलोज, ये तीनों पॉलीसैकेराइड्स हैं. शुगर और स्टार्च ये दो कार्बोहाइड्रेट है जिनको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते. Then what is the need to take the cellulose? Because the cellulose during digestion it converts into roughage that helps to maintain the healthy digestive system. तो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. और भी हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, फिर वो ये है कि वीडियो की जो लेंथ वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको अपलोड करने में भी दिक्कत है, कुछ बच्चों के दिमाग में अपलोड करने में भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं. हमारे पास तो पढ़ाने के लिए बहुत सारा है. Now, the second digestive gland, it is gastric gland. It is present in stomach. Gastric glands ये पेट के अंदर होगी, पेट को शो किया हुआ है. पेट के अंदर खाना आएगा बाय द ईसोफेगस और पेट के अंदर होगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन होने के बाद में यहाँ से खाना चला जाता है, फूड बोलस चला जाता है डिओडेनम में, द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. As the food reaches in the stomach, the gastric glands they become active and they releases the gastric juices. Gastric juices contains two things, the dilute HCl and the inactive form of protein digestive enzyme, that is what pepsinogen. मैंने बोला है कि as the food reaches in the stomach, the gastric glands they become active. तो इसका मतलब ये है कि पेट के अंदर खाना आप पहुंचा रहे हो दिन में 3 बार, मैक्सिमम 4 बार से ज्यादा नहीं, क्योंकि every time the food goes into the stomach, the gastric glands become active, they release gastric juices that is having the dilute HCl. आप ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इन बिटवीन आप फ्रूट्स एंड जूसेस लेते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जितना काम करना चाहिए उतना काम कर रही है और आपकी बॉडी भी अच्छा सा काम कर रही है, आपके आसपास में लोग हैं स्वस्थ है और आपके साथ कंफर्टेबल हैं. अगर आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को काम ज्यादा करा लिया, दिन में 10 बार खा रहे हो, तो एवरी टाइम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे बिकम एक्टिव, दे रिलीजेस गैस्ट्रिक जूसेस, और गैस्ट्रिक जूसेस ज्यादा रिलीज होंगे तो पेट के अंदर गैस बनना शुरू हो जाएगी. पेट के अंदर गैस बनना शुरू हो जाएगी तो क्लासरूम के अंदर गैस पास करना शुरू कर दोगे. क्लासरूम में गैस पास करना शुरू कर दोगे तो आसपास वाले कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, आपको आसपास में छोड़ के भाग जाएंगे. इसलिए खुद भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी रहने दो. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को दिन में 3 या 4 बार ही काम करवाओ, उनसे ज्यादा काम मत करवाओ. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक release gastric juices and the gastric juices contains 2 things, the dilute HCl and pepsinogen. What are the functions of
डाइल्यूट HCl, ये शो किया हुआ स्लाइड में. इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम इन द स्टमक. So the medium of digestion in the stomach is acidic because of gastric glands. Second, it kills the germs or the microbes. आप देखिए बेटा, हम कई बार हल्का सा बासी फ्रूट खा जाएं या सब्जियां खा जाएं, हम उनको पचा लेते हैं, ठीक रहते हैं, क्योंकि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स में, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में इतनी ताकत है कि वो जर्म्स एंड माइक्रोब्स को मार दें. एंड थर्ड पॉइंट, दैट गैस्ट्रिक जूस के अंदर डाइल्यूट HCl है और पेप्सिनोजन है. पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. With the help of dilute HCl, this inactive form of protein digestive enzyme, it converts into pepsin. और पेप्सिन स्टमक के अंदर प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन करता है. कैसे करता है ये हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे. हाँ, जो इन्फेंट्स है, जो 1 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनके अंदर पेप्सिनोजन नहीं होगा, उनके अंदर होगा प्रोरेनिन. उनके अंदर होगा प्रोरेनिन. दैट ब्रिंग्स द कर्डलिंग ऑफ द मिल्क. अब किसी को इस बारे में डिस्कस करना है तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में जाएं, आप अपने क्वेश्चंस भेजें, हम आपको रिप्लाई करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. बेटा ये हमारा एकेडमी के बारे में डिटेल्स हैं. सांकला क्लासेस आपका यूट्यूब पे चैनल है और ये हमारा ईमेल आईडी है. आपको एकेडमी के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मेल कर सकते हैं और आपको कॉल करके टेलीफोनिकली आपने बात करना है. एकेडमी में एडमिशन लेना है, किसी भी तरह की क्वेरी चाहिए, सो यू कैन हैव अ कॉल ऑन दिस नंबर. थैंक यू.